Welcome to the today's lecture, and today we will discuss elastic collision in two dimensions. We have read elastic collision in one dimensions. We calculated the velocities after collision of the two colliding bodies. Then we discussed some special cases. Now today we will discuss elastic collision in two dimensions. देखो बच्चों कैसे करेंगे हम. Suppose यहाँ पर we have a particle. Say this is the particle A, and this particle A has mass m1. Suppose we have a particle A having mass m1. Suppose this particle A is moving with a velocity of u1 along x-axis. This is x-axis. Suppose here we have a particle B. Suppose this particle B has mass m2, and suppose this particle B is at rest. Now, therefore, u2 will be equal to 0. u2 will be equal to 0. We have a particle A of mass m1 which is moving with velocity u1 along x direction, I mean x-axis. This is x-axis. X-axis with velocity u1. Suppose after some time this particle A it strikes a particle B having mass m2 which is at rest. Now this particle B, this is called as a target particle. इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं target particle. This is called as target particle. And this particle A, this will be called as incident particle. Incident particle. हमारे पास दो पार्टिकल्स है. एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 before colliding with the particle B. Now suppose after collision जो हमारा particle A है, this is moving in this direction with velocity v1. This is particle A. Suppose this moves in this direction with velocity v1. Suppose it makes an angle of theta 1 with x-axis. After collision जो particle A है, जो incident particle है, ये move कर रहा है with velocity v1 in a direction making angle theta 1 with x-axis. That means with that in a direction making angle theta 1 along x-axis. X-axis वो direction है जहां particle move करता था before collision. Suppose जो after collision जो particle B है, particle B moves in this direction with velocity v2. With velocity v2, suppose it makes an angle theta 2 with the x-axis. हमारे पास एक particle A है जिसका मास m1 है. Before collision the particle A is moving with velocity u1. ठीक है. Now this particle A, it strikes a particle B which is at rest before collision. Let after collision जो ये particle A है, it moves with velocity v1 in a direction making angle theta 1 with x-axis, and particle B moves with velocity v2 in a direction making angle theta 2 with x-axis. Now, अब हम क्या काम करेंगे? पहले हम इस velocity v1 और velocity v2 को हम क्या करेंगे काम? velocity v1 और velocity v2 जो है इनको हम रिजॉल्व करेंगे. हम पहले क्या काम करेंगे? शाबाश. रिजॉल्विंग वेलोसिटी v1 into rectangular components. Resolving velocity v1 into rectangular components. देखो बच्चों, जो ये v1 होगा हमारा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वो कंपोनेंट होगा इसका v1 cos theta 1 along x-axis. That component will be v1 cos theta 1. तो दूसरा कंपोनेंट जो होगा that will be in this direction, that will be equal to v1 sin theta 1. तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा इसका क्या होगा? शाबाश. v1 sin theta 1 along x-axis होगा ये. शाबाश. दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा that will be v1 ये होगा
दिस इज v1 cos थीटा 1 along x axis जो है दैट इज v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 along y axis जो होगा that will be equal to शाबाश, that will be equal to v1 sin थीटा 1. this will be vertical component along y axis. ये तो vertical component है. this is what component? vertical component. this will be along y axis. यहां से इस साइड में मेरी कौन सी एक्सिस है बेटा? ये है y axis. तो y एक्सिस वाले साइड में जो मेरा कंपोनेंट होगा v1 का वो होगा v1 sin थीटा 1. हमने रिजॉल्व किया हमने रिजॉल्व किया इसको, यहां पर रिजॉल्व किया v1 को हमने रिजॉल्व किया. एक बनाया हमने v1 cos थीटा 1 दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज v1 sin थीटा 1. इसी तरीके से हम v2 को भी रिजॉल्व करेंगे. v2 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी इक्वल टू v2 sin थीटा cos थीटा, v2 cos थीटा 2 दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और हमारा यहां पर जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2 दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट मींस अलोंग नेगेटिव y एक्सिस. दिस इज y एंड दिस इज y डैश. इसी तरह हमने रिजॉल्व करना है, रिजॉल्विंग वेलोसिटी v2 into rectangular components. पता है आपको, पहला होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा बेटा? शाबाश, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2 cos थीटा 2, v2 cos थीटा 2 यानी x कंपोनेंट. दूसरा मेरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा मेरा v2 sin थीटा 2 along नेगेटिव x, नेगेटिव y एक्सिस दैट मींस along y डैश. तो मैंने पहला स्टेप क्या मैंने किया, v1 और v2 को मैंने रिजॉल्व किया. v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v1 cos थीटा 1, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है v1 sin थीटा 1. अब v2 को रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2 cos थीटा 2, वर्टिकल कंपोनेंट है v2 sin थीटा 2. अब ये v1 sin थीटा 1 और v2 sin थीटा 2 जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर. नाउ आगे मैं आप क्या करूंगा, चूंकि मेरा जो क्लूजन है दैट इज इलास्टिक क्लूजन, सिंस द क्लूजन इज इलास्टिक, लिहाजा इलास्टिक क्लूजन में क्या काम होगा मेरा, बोथ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व. क्योंकि क्लूजन इलास्टिक है, इलास्टिक क्लूजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होती है, वो दोनों कंजर्व होता है. नाउ यहां पर क्या काम करेंगे, यहां पर हम क्या काम करेंगे, वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस. तो मैं पहले लिखूंगा अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, applying law of conservation of linear momentum along x axis. देखो वो क्या कहेगा, वो कहेगा आपको टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलूजन along x axis is equal to total linear momentum आफ्टर कोलूजन along x axis. देखो बेटा अभी मैं यहां पर क्या काम करूंगा, आई विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. चूंकि लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा यहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम x एक्सिस के वी हैव टू अप्लाई दिस along x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. पहले हम इसको अप्लाई करेंगे along x एक्सिस. along x एक्सिस हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें होगा टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलूजन along x एक्सिस इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलूजन along x एक्सिस. लेट अस राइट इट. देखो बेटा बिफोर कोलूजन जो मेरा पार्टिकल A है उसकी मास है m1 और उसकी वेलोसिटी जो along x एक्सिस है दैट इज u1. तो दिस इज वी हैव m1 u1 प्लस पार्टिकल B की मास क्या है m2, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलूजन जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 0. दिस इज m2 into 0 इज इक्वल टू, यहां देखो अब पार्टिकल A जो है along x एक्सिस इसकी वेलोसिटी क्या है शाबाश, v1 cos थीटा 1. ठीक है ना, तो मास क्या है पार्टिकल A का m1, तो ये होगा बराबर m1
v1 cos थीटा 1, क्योंकि आफ्टर कोलिजन इस पार्टिकल ए की जो x एक्स की तरफ वेलोसिटी है वो है v1 cos थीटा 1 प्लस पार्टिकल b जो है जिसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी जो है अलोंग x एक्सिस है वो क्या है v2 cos थीटा 2। क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हमें पॉजिटिव हम पॉजिटिव साइन यहां लिखेंगे। दिस इज m2 v2 cos थीटा 2। तो यहां पर हमारी पहली इक्वेशन बनी, दिस इज m1 u1, चूंकि ये 0 हो गया, m2 into 0 is 0, this is m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2। let us call this equation number first। ये मैंने क्या काम किया, I have applied this law of conservation of linear momentum along x-axis। similarly applying law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum along y-axis। similarly applying law of conservation of linear momentum along y-axis। तो हमें क्या होगा बेटा, हमें होगा टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन along y-axis। क्या होगा बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम before collision along y-axis equal to total linear momentum after collision along y-axis। देखो बच्चों, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन along y-axis। बिफोर कोलिजन जो हमारा पार्टिकल ए है, इट इज नॉट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 0। तो हमें ऐसे मिलेगा m1 into 0 because before collision particle A is not moving along y axis, it is moving only along x axis, plus m2 into 0 क्योंकि before collision जो आपका पार्टिकल भी है टारगेट पार्टिकल that is at rest is equal to, शाबाश, आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी क्या है v1 v1 शाबाश cos पार्टिकल ए जो है ना आफ्टर कोलिजन इसको y एक्सिस के साइड से क्या वेलोसिटी है v1 sin थीटा 1। तो मोमेंटम क्या बनेगा अलोंग y एक्सिस m1 v1 sin थीटा 1। ये है m1 v1 sin theta 1। what is this v1 sin theta 1? this is the velocity of particle A after collision along y axis। now चूंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B आफ्टर कोलिजन along y axis जो है that is v2 sin theta 2, but this v2 sin theta 2 is opposite to v1 sin theta 1। तो हमें यहां पर माइनस साइन आएगा, that will be equal to m2 v2 sin theta 2। चूंकि आफ्टर कोलिजन along y axis जो पार्टिकल B का मोमेंटम यानी m2 v2 sin theta 2 जो है that is opposite to the linear momentum of particle A after collision, that is m1 v1 sin theta 1। इसीलिए यहां पर क्या साइन आया बेटा, माइनस साइन आया। तो यहां पर हमें बन गया एक और इक्वेशन, क्या बन गया हमें 0, क्योंकि ये 0 है और ये भी 0, दिस इज 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin theta 1 माइनस m2 v2 sin theta 2। इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर अब लिखूंगा इस इक्वेशन को, ऐसे लिखूंगा मैं इस इक्वेशन को, क्या निकली मुझे इक्वेशन m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2 is equal to 0। let me call this equation number 2। ये है conservation of linear momentum along x axis, ये है conservation of linear momentum along y axis। now चूंकि मेरा जो collision है, my collision is elastic, therefore kinetic energy is also conserved। now as per law of conservation of kinetic energy, as per law of conservation of kinetic energy मेरा क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो होगा बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या है मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी। वो होगा मुझे 1/2, पार्टिकल ए का मास क्या है m1, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है u1, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2, पार्टिकल b की जो वेलोसिटी है वो है 0 बिकॉज़ दैट इज एट रेस्ट, इज इक्वल टू, चूंकि
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा उसको हमें ये जरूरत नहीं है कि वेदर वी अप्लाई इट अलोंग y एक्सिस और वी अप्लाई इट अलोंग x एक्सिस, हम सीधे इसको अप्लाई करेंगे। दिस इज 1/2 m1, पार्टिकल A का मास क्या है m1, आफ्टर कोलिजन इसकी क्या वेलोसिटी है, इसकी क्या वेलोसिटी है v1, या स्पीड, इसकी स्पीड क्या है इसकी v1। दिस इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर, शाबाश, प्लस पार्टिकल B की क्या होगी, शाबाश, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बनेगा हमें, शाबाश, दिस विल बिकम 1/2, शाबाश, m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0, दैट इज मीन 0 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, इन तीन इक्वेशंस में हमारे पास 4 अननोन्स है। एक अननोन है θ1, दूसरा अननोन है θ2, तीसरा अननोन है v1, चौथा अननोन है v2। नाउ when we solve these equations, equation first, second and third, we can get the values of these 4 unknowns। कौन कौन अननोन है, v1, v2, θ1 and θ2। Now solving equation first, second and third, what we get? We get the values of the 4 unknowns, v1, v2, θ1, θ2। Now हम क्या करेंगे, इनमें से एक अननोन जो θ1 है या θ2 है उसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। Now out of the 4 unknowns, one unknown, say θ1, is determined experimentally. Therefore the 3 equations, they can be solved for obtaining the value of the other 3 unknowns. Now let us discuss its special cases. Let us discuss its special cases. यहां पर हमारी तीसरी इक्वेशन है 1/2 m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पहला स्पेशल केस, ग्लांसिंग क्लूजन। नंबर 1, ग्लांसिंग। पहला स्पेशल केस जो है वो है ग्लांसिंग क्लूजन। ग्लांसिंग क्लूजन के लिए क्या होता है बेटा, हमारा जो θ2 θ1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। फॉर ग्लांसिंग क्लूजन θ1 जो होगा वो इसको होगा 0 डिग्री। दैट मींस इंसिडेंट पार्टिकल जो है दैट कीप्स मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एज इट हैज बिफोर क्लूजन। और θ2 जो है वो है 90 डिग्री। फॉर ग्लांसिंग क्लूजन हमारा जो θ1 होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी इंसिडेंट पार्टिकल ट्राइज टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन व्हिच इट हैज बिफोर क्लूजन। और जो टारगेट पार्टिकल है दैट मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। नाउ अब हम θ1 और θ2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देंगे और सेकंड में देंगे। Therefore from first we have m1 u1 is equal to m1 v1 cos of 0 degree plus m2 v2 cos of 90 degree। cos 90 जो है वो 0 है, इसका मतलब है जो सेकंड टर्म है दिस विल वैनिश। तो हमें ऐसे निकलेगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 इंटू cos 0 होगा 1 प्लस cos 90 होगा 0, तो ये टर्म 0 बनेगी। तो हमें क्या निकलेगा बेटा, हमें निकलेगा यहां पर क्या निकलेगा, हमें यहां पर शाबाश, हमें निकलेगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1। तो बेटा m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें u1 निकलेगा बराबर v1। दैट मींस हमें v1 निकलेगा बराबर किसके बराबर, u1। अब हम यही वैल्यू θ1 और θ2 का वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में पुट θ1 इज इक्वल 0 एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा m1 v1 sin 0 माइनस m2 v2 sin 90 इज इक्वल टू 0।
साइन जीरो जो है वो जीरो है, तो ये सारा जीरो बनेगा, माइनस बनेगा m2 v2 इंटू साइन 90 है 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको ऐसे निकलेगा m2 टाइम्स m2 v2 इज इक्वल टू 0, तो आपका जो v2 निकलेगा वो निकलेगा आपको 0। जब v2 0 निकला तो जो ये टारगेट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, टारगेट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट आफ्टर कोलिजन वो होगी 1/2 m2 इंटू 0 स्क्वायर, दैट विल बी 0। इसका मतलब है जब ग्लांसिक कोलिजन होगा उस वक्त क्या होगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन इट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी व्हिच इट हैज बिफोर कोलिजन। It means that during glancing collision there is no loss in the kinetic energy of the incident particle, because the incident particle has same velocity as it has before collision. Therefore, in case of glancing collision, the kinetic energy of the kinetic energy of the incident particle remains same as that it had before the collision. It means that there is no loss of kinetic energy of incident particle during glancing collision, and this incident particle it tries to move in the same direction which it has before collision. Conclusion. अब दूसरा स्पेशल केस जो है वो हम पढ़ेंगे हेड ऑन collision. Now in case of head on collision, what will happen? The target particle moves in the direction of the incident particle. लिहाजा हमारा θ2 जो होगा वो होगा 0 डिग्री। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है बेटा, हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जो टारगेट पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में क्या चलता है, इंसिडेंट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो आपका जो θ2 होगा, द एंगल बिटवीन द टारगेट पार्टिकल एंड द एक्स एक्सिस, दैट θ2 इज इक्वल टू 0। तो हम θ2 का वैल्यू देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। देयरफॉर from first we get m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos of 0 डिग्री, थीटा 2 के बदले 0 डिग्री, चूंकि cos 0 जो है that is equal to 0, तो आपको ऐसे निकलेगा m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1। तो ये रिड्यूस हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। cos 0 is 1, सॉरी, यहां पर क्या है आपका, ये है m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 प्लस जो हमारा cos 0 है that's 1, तो आपको होगा m2 v2। तो आपको ये जो है this becomes this equation फर्स्ट जो है it reduced to this form, m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2। अब हम देखेंगे सेकंड क्या बनेगी, सेकंड बनेगी m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin 0 डिग्री, थीटा 2 के बदले 0 is equal to 0। चूंकि sin 0 जो है that's 0, तो आपकी जो इक्वेशन सेकंड है that reduces to क्या बन गई, that becomes शाबाश m1 v1 sin theta 1 is equal to 0। तो ये है हेड ऑन कोलिजन जब होगा, थीटा 2 0 हो गया, थीटा 2 का वैल्यू दिया फर्स्ट और सेकंड में, तो हमें ये दो इक्वेशंस दिखले m1 v1 sin theta 1 m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 equal to m1 v1 sin theta 1 equal to 0। तो ये दो इक्वेशंस जो है, ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमें v1 और v2 निकलेगा और थीटा 1 निकलेगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन of two identical particles in two dimensions. Elastic collision of two identical particles in two dimensions.
हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यहां पढ़ा था हमने बेटा, ये पढ़ा था हमने इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल, यहां पढ़ा था हमने इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू डायमेंशंस। लेकिन दोनों पार्टिकल्स की मास जो थी वो डिफरेंट थी। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है मैं सेम लूंगा, मैं दिखाऊंगा कि आफ्टर कोलिजन these two identical particles they move at right angles to each other। मैं प्रूव करूंगा कि आफ्टर कोलिजन ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है इन केस ऑफ टू डायमेंशंस, आफ्टर कोलिजन these two identical particles they move at right angles to each other। कभी इम्तिहान में आ सकता है आपको, show that in case of elastic collision of two identical particles the two particles move at right angles to each other after collision। देखो बेटा, let M1 is equal to M2, ये M1 जो है ये मैं लूंगा M2 के बराबर, तो दोनों मैं लूंगा किसके बराबर बेटा, MC। चूंकि अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने इसका भी मास लिया M और इसका भी मास लिया M, इसका भी मास M होगा, इसका भी मास M होगा। तो चूंकि मेरा कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, नाउ एज पर law of conservation of kinetic energy, law of conservation of kinetic energy, मुझे क्या होगा, kinetic energy of particle A before collision, यानी मैं मेरा होगा ऐसे 1/2 m u1 स्क्वायर। अब टारगेट पार्टिकल जो है उसका भी मास m है, दिस इज 1/2 m इंटू 0 स्क्वायर, चूंकि इनिशियली वो बिफोर कोलिजन रेस्ट में है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, चूंकि जो पार्टिकल A है उसकी जो वेलोसिटी जो है v नहीं है, v1 स्क्वायर है, शाबाश, प्लस पार्टिकल B की क्या वेलोसिटी है, v2, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m v2 स्क्वायर। अब m जो है यहां पर दैट विल कैंसल थ्रू आउट, 1/2 विल आल्सो कैंसल थ्रू आउट, तो हमें ऐसे पहले बनेगा 1/2 m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर। अब 1/2 जो है दैट विल कैंसल थ्रू आउट, m जो है दैट विल आल्सो कैंसल थ्रू आउट, तो हमें क्या निकलेगा यहां पर, शाबाश बेटा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने अप्लाई किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अप्लाई करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ as per law of conservation of linear momentum, as per law of conservation of linear momentum, वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं ऐसे लिखूंगा, पार्टिकल ए का मास जो है वो है m, वेलोसिटी मैं लूंगा ऐसे में ले सकता हूं वेक्टर u1, चूंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू m, पार्टिकल जो A है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी है v1, तो मैं लिखूंगा m वेक्टर v1, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा, प्लस पार्टिकल B की वेलोसिटी जो है वो है v2, तो मैं लिखूंगा m वेक्टर v2। दिस इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैंने वेक्टर लिया क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर भी आपका m जो है वो कैंसिल होगा थ्रू आउट, कैंसलिंग m थ्रू आउट, तो आपको निकला u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, आपको निकला u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड रखूंगा नाम, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपली मुझे यहां निकला m1 u1, वहां देखो, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वी विल कैंसिल m थ्रू आउट, दिस इज u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां देखो मुझे फर्स्ट इक्वेशन क्या निकली बेटा, आपने भी देखा इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में यहां लिखूंगा u1 जो मेरा निकला वो निकला बराबर v1 प्लस v2। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस u1 का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा u1 के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ u1 विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ये क्या बनेगा, शाबाश,
u1 डॉट u1 इज इक्वल टू, पहले u1 का वैल्यू क्या है शाबाश, v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। यहां देखो u1 को मैंने अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, दिस इज u1 डॉट u1 इज इक्वल टू u1 का वैल्यू v1 प्लस v2 डॉट u1 का वैल्यू v1 प्लस v2। चूंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर, वेक्टर्स पढ़ा आपने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। तो ये बनेगा u1 डॉट u1 हो गया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां डॉट प्रोडक्ट करो, दिस इज v1 डॉट v1, तो यहां पर ऐसे आएगा v1 डॉट v1 प्लस v1 को अब v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, यह आएगा v1 डॉट v2 प्लस, अब v2 से करो, यह आएगा v2 डॉट v1 प्लस, शाबाश, प्लस आएगा v2 डॉट v2। ये देखो v1 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2, अब v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2, तो ये बनेगा ऐसे u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ दैट इज v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है v1 डॉट v2, चूंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b किसके बराबर होता है, b डॉट a, लिहाजा v1 डॉट v2 जो v2 डॉट v1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू v1 डॉट v2, दिस इज v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v2 जो होगा दैट इज v स्क्वायर, अब v दैट इज v2 स्क्वायर, अब v2 को लिखेंगे यहां पर v1 स्क्वायर के जगह, तो ये होगा v1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डॉट v2। अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एज पर इक्वेशन फर्स्ट वो किसके बराबर है, u1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है एज पर इक्वेशन फर्स्ट दैट्स इक्वल टू u1 स्क्वायर, तो एज बाय फर्स्ट हमें क्या आएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो के बदले भी आएगा u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डॉट v2, चूंकि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एज पर फर्स्ट किसके बराबर है, u1 स्क्वायर। अब u1 स्क्वायर को यहां लेंगे तो हमें निकलेगा ट्वाइस v1 डॉट v2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, शाबाश, तो हमें आएगा क्या आएगा, हमें आएगा ट्वाइस v1 डॉट v2 इज इक्वल टू, अपना जो है वो है u1 स्क्वायर माइनस आएगा यहां से u1 स्क्वायर, तो हमारा निकलेगा ट्वाइस v1 डॉट v2 जो है दैट विल इक्वल टू 0, और दिस एम्प्लाइज मुझे निकलेगा v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, यानी v1 और v2 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 निकला हमें, या जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है उसका मतलब है जो ये दो वेक्टर्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दिस एम्प्लाइज v1 विल बी परपेंडिकुलर टू v2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो इनका है दैट वैनिशेस, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स वैनिशेस, देयरफॉर v1 विल बी परपेंडिकुलर टू v2। तो आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया कि अगर हम इलास्टिक क्लूजन पढ़ेंगे दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का इन टू डायमेंशंस, आफ्टर क्लूजन these two particles they move at right angles to each other, चूंकि जो after collision इनकी velocities है they are perpendicular to each other, hence their directions of motion are perpendicular to each other, so we can say that in case of elastic collision of two identical particles, what happens, these two identical particles after collision move at right angles to each other, this completes your collision.